محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ریاست میں فصلوں کی خرید و فروخت، بی جے پی کی عوام مخالف پالیسیوں سے عوام کو آگاہ کرنے و دیگر مقاصد کے تحت تلنگانہ بھون میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد۔ سابقہ ضلع MLC آکولا للیتا بحیثیت تلنگانہ وومن فائنانس چیئرمین ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے کیا نامزد۔ وہ مزید 5 محکمہ جات کے چیئرمین کے ناموں کا کیا اعلان۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی غلط پالیسیوں کے سبب ابھی تک ریاست میں 2 طلباء کی موت، تو شہر میں 1 طالب علم فوت۔ آن لائن کلاسز کے سبب طلباء کا ہوا رواں سال کافی تعلیمی نقصان، طلباء تنظیم نے کیا احتجاج منظم۔ موکل منڈل میں نماز و عبادت کے لیے مسجد کمیٹی کو ایک شخص نے کیا اپنی اراضی کا عطیہ۔ دوسرے دن بھی مرکز کی جانب سے بینکس کو خواندگی کے خلاف شہر میں بینک ملازمین کی جانب سے احتجاج جاری۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر کے مختلف برقی سب اسٹیشن کی ماہانہ جانچ و مرمت کے مد نظر شہر کے بیشتر اقلیتی علاقوں میں 18 دسمبر بروز آفتاب برقی رہے گی بند، عوام سے تعاون کی اپیل۔ محکمہ برقی کی جانب سے صحافتی بیان۔ محکمہ برقی نظام آباد کی جانب سے ایک صحافتی بیان جاری کرتے ہوئے عوام الناس کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ماہ کے تیسرے ہفتے کے مد نظر ارسا پلی و مرچی کمپاؤنڈ برقی سب اسٹیشن کے ماہانہ مرمت و جانچ کی غرض سے 18 دسمبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے تا دوپہر 3 بجے تک شہر کے علاقے احمد پورہ کالونی، مالا پلی، مجاہد نگر، انارائی کالونی، درپلی، آٹو نگر، ارسا پلی، کھوجا کالونی، مرچی کمپاؤنڈ، اسلام پورہ، حبیب نگر میں برقی بند رہے گی، لہٰذا عوام سے تعاون و قبل از وقت سے تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ حکومت کی جانب سے بغیر منصوبہ بندی کے امتحانات منعقد کرنے پر ریاست کے 2 طلباء نے کی خودکشی۔ آن لائن طریقہ کار کے تحت طلباء کو تعلیم دینے کے باعث نشانات کمانے سے طلباء میں ڈر و خوف پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال حکومت نے بغیر امتحان کے تمام طلباء کو کامیاب قرار دیا، لیکن اس سال حکومت کی جانب سے بنا منصوبہ بندی کے امتحانات منعقد کرنے پر طلباء تنظیموں نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اسی طرح اس سال منعقدہ امتحانات میں طلباء کم نشانات آنے کی بنا پر 2 طلباء مایوسی کا شکار ہو کر خودکشی کر لی، اور اس کے علاوہ نلگونڈا شہر کے گاندھی نگر کے طلباء جہانوی نے خودکشی کی، اور نظام آباد میں بھی ایک طالب علم نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تلنگانہ بھون میں چیف منسٹر KCR کی صدارت میں TRS عوامی نمائندوں کے ساتھ TRS پارٹی کا وسیع اجلاس کا آغاز ہوا، اور CM KCR کے تلنگانہ بھون پر آمد کے موقع پر TRS عوامی نمائندوں نے کیا شاندار استقبال۔ چیف منسٹر KCR کی صدارت میں تلنگانہ بھون میں منعقدہ اجلاس میں 9 منتخب کارپوریشن چیئرمین نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ریاستی وزراء، رکن پارلیمنٹ، MLCs، MLAs، ریتو بندھو سمیتی کے ضلع صدر، ریاستی پارٹی کے نگران کار ممبران و ریاستی کارپوریشن چیئرمین اور تقریباً 310 تا 340 سینئر قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں CM KCR کی جانب سے تمام قائدین کو احکامات جاری کرتے ہوئے، جن میں ریاست میں ربی سیزن سے وابستہ متبادل فصلوں کے تعلق سے دلت بندھو پروگرام کے ساتھ پارٹی کی ترقی اور پارٹی دفتر افتتاحی تقریب اور پارٹی قائدین تربیت دینے کے علاوہ نامنیٹڈ عہدوں پر تقررات عمل میں لانے کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرنے کے امکانات ظاہر ہونے کا عوامی نمائندوں نے اظہار کیا۔
आरमूर वार्ड नंबर 22 में शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशबाजी का पेश आया वाकया। मुतासर अफराद को पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से माली इमदाद का ऐलान। आरमूर म्यूनसिपल नायब सदर नशीन शेख मुन्नू मुकामी कॉर्पोरेटर्स ने मुतासर अफराद के घर पहुंचकर की रकम हवाले। आरमूर म्यूनसिपल के पेरकेट 22 वार्ड में एक दिन कबल गंगाराम शख्स का मकान अचानक शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक-ए-तर हो गया था, जिसके 3 लाख रुपए का सामान जलकर नुकसान हो गया। आतिशबाजी के वाक़े की इत्तला पाकर रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जानिब से 10,000 रुपए की इमदाद पहुंचाई। इसी तरह आज आरमूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली और लकी शंकर ने मुतासरीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए रकम हवाले की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि इस गरीब खानदान को 10,000 रुपए का माली ताउन रुकन असम्बली आरमूर की जानिब से किया गया है। हुकूमत व रुकन असम्बली के जरिए और अपनी जानिब से मज़ीद मदद फराहम करने का इन्होंने तयक़ुन दिया, जिस पर गंगाराम के अफराद खानदान ने रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी और वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मुकामी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली व लकी शंकर से इज़हार तशक्कुर किया। कम से कम एक 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। इनके जो फ्रिज, जो घर का जितना भी सामान था सारा जल चुका है। इसकी इत्तला मुझे मिली। रात में फायर इंजन को जो है यहाँ पे बाजू वाले जो थे हमारे अब्दुल्ला साहब वगैरह फायर इंजन को बुलाए, रात में बुझा दिए। फिर सुबह मुझे इत्तला जब मिली तो मैं यहाँ पर आकर सब देखने के बाद एमआरओ साहब के पास गया। एमआरओ साहब को इत्तला दी। उसके बाद एमआरओ साहब आरआई साहब को यहाँ पर स्पॉट पे भेजे, पंचनामा किया गया और कितना नुकसान हुआ इन सब की रिपोर्ट बनाकर हुकूमत को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसकी रिपोर्ट बनाकर हमारे आरआई साहब जो है हुकूमत को रवाना किए हैं। और ये इत्तला जब हमारे आरमूर एमएलए जनाब जीवन रेड्डी साहब को मिली तो उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अमृतम्मा के लिए एक मदद के तौर पर 10,000 रुपये हमारे वाइस चेयरमैन साहब जनाब मुन्नू साहब के हाथों 10,000 रुपये भेजे हैं। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं और जनाब जीवन रेड्डी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि ये गरीब लोग हैं, इनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, तो जितना चाहे हम हुकूमत की जानिब से इनकी मदद की जाए। और साथ ही साथ जीवन रेड्डी साहब भी अपनी तरफ से और भी अगर ज़्यादा इनके लिए कुछ करते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और हम हुकूमत से हो या जो गवर्नमेंट से हो, हम कोशिश करके जितना हो सके हमारी जानिब से हम कोशिश करेंगे और एमएलए साहब के नॉलेज में भी लेके आएंगे। हमारे वाइस चेयरमैन के हाथों जो 10,000 रुपये भेजे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जीवनाना को मालूम होते बराबर जीवनाना बोले कि मुन्ना फलाने जहीर भाई के वार्ड में जो घर जलगा करते, पहली फुर्सत में मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो ले आके मैं उनको जाके घर को जाके पहुँचा। लिखी शंकराना बुला ले, जहीर भाई को बुला ले के ले आके देव बोल के बोले क्यों ऐसा नहीं, अभी और इनको जो घर का भी है अगर कुछ फंड भी आएगा तो हम पहले इनको फंड लगाएंगे। हमारे जीवनाना को बोल के हम ऐसे गरीब आदमियों को हमारे जीवनाना पहले मदद करते और हमारे जो भी काम होगा हमारे हुकूमत से जो भी करेंगे, हमारे अम्मा को जो भी आज हमारे आरए साहब भी जो चावल ला के दिए उनकी मदद करें, उनका भी शुक्र अदा करेंगे हम। जो भी और हम 25 किलो के चावल के पैकेट भी मैं जब तक भिजाया तो क्यों आज 25 किलो चावल के पैकेट भी जब तक 1 घंटे से 2 घंटे तो मैं भिजाते ఇక్కడ మాకు సాయం చేస్తున్నాడు, చేసిండు. ఈ పిల్లగాడైతే కాలిన సంధి మాకు సాయం చేసిండు. కాలిన నాడు సంధి ఆ పిల్లాడికి చెప్పిన రోజుల్లో కానీ ఆయన నచ్చిండు, మా ఇల్లంతా చూసిండు, మమ్మల్ని కాపాడిండు. లిక్కి శంకర్ అన్న నచ్చిండు, జైర్ భాయ్ వచ్చిండు. जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना की रियासती सदर हजरत मौलाना मुफ्ती गियास साहब रहमानी की क़ियादत में जमीयत उलमा के एक वफद की वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से खुसूसी मुलाकात। जैसा कि आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ है कि शेख नोमान को भैंसे में होने वाले फसादात के झूठे मुकदमात दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका ताल्लुक मुस्लिम तबके से और खासकर भैंसे शहर से होने की बिना पर इनको गुज़िश्ता 4 माह से जेल में ही मैसूर किया गया। और नोमान के वाले शेख महमूद साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट में होम गार्ड की खिदमत अंजाम दे रहे थे, इनको भी मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में तफसीली
तफसीली गुफ्तगू और नुमाइंदगी के लिए हाफिज मोहम्मद लईक अहमद साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने जमीयत उलमा की रियासती सदर हजरत मुफ्ती ग़ियास साहब रहमानी की क़यादत में वो रियासती जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ज़ुबैर साहब के हमरा वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से मुलाकात करते हुए इस वाक़े पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए हकीकत से वाकिफ करवाया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरन इसी वक्त IG साहब से फ़ोन पर राब्ता करते हुए इस वाक़े की तफसील बताई और जल्द अज जल्द इस वाक़े को हल करने और इंसाफ करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि भैंसा शहर जैसे हसास समझा जाता है, वहाँ पुलिस के आला ओहदेदार बंदोबस्त के नाम पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी क़ासमी दामत बरकातहुम जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा के सदर मुंतखब होने पर कामारेड्डी जमीयत उलमा की जानिब से मुबारकबादी का पैगाम। हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयत उलमा ज़िले कामारेड्डी ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की रियासती जमीयत उलमा के मेम्बरान की जानिब से अमीरुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी व क़ासमी दामत बरकातहुम को इत्तिफ़ाक़ राय से सदर मुंतखब होने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम दक्कन की ऐसी मुमताज़ शख्सियत है जो जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा के सही मानों में सदर के मुस्तहिक़ है, क्योंकि हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम ने इब्तिदा ही से बेलुस होकर बिला किसी सियासी अगराज़ व मक़ासिद जमीयत के साथ और अकाबरीन जमीयतुल बेखुसूस क़ायद जमीयत जानशीन शेख उल सलाम हजरत मौलाना मदनी साहब दामत बरकातहुम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यकीनन तेलंगाना व आंध्रा के हम तमाम अराकीन ख़दाम व जमीयत से वाबस्ता इब्तिदाई मेम्बरान के लिए खुशी का मौका है कि हजरत मुफ्ती साहब ने फिर एक बार जमीयत उलमा की बारगाह जिम्मेदारी को हम छोटों के बेहद इतरार के बाद कबूल किया। अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी, मुफ्ती इमरान खान क़ासमी, हाफिज मोहम्मद मुश्ताक अहमद नक्शबंदी, हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी अनवर नायबीन सुदूर, मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी जमीयत उलमा कामारेड्डी, मीर फारूक अली साहब, हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली, हाफिज मोहम्मद इम्तियाज साहब काशिफी, हाफिज मोहम्मद इंतजार अहमद साहब, हाफिज मोहम्मद ताक़िउद्दीन मुनीरी, शेख इस्माइल भाई, मोहम्मद हमजा के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम आप जैसे बेलुस मखलूस कौम व मिलत के सच्चे क़ायद जमीयत की निगरानी व सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने आप जैसा बेबाक क़ायद हमें दिया है, जिनकी निगरानी व सरपरस्ती में काम करने की तौफीक अता फरमाई। हम तमाम जमीयत उलमा कामारेड्डी के कारकुनान व ज़िम्मेदारान बारगाह इलाही में अल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातहुम को सेहत व सलामती के साथ उम्र को दराज फरमाए, हमारे सरों पर हजरत मुफ्ती साहब के साय को तादेर कायम रखे। जुमला खदाम व कारकुनान व मेम्बरान जमीयत उलमा कामारेड्डी। जिले कामारेड्डी मदन मंडल मोघा देहात में मुकामी सरपंच सूर्यकांत के हाथों ड्रेनेज की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले कामारेड्डी मदन मंडल मोघा देहात में मुकामी सरपंच सूर्यकांत ने ड्रेनेज तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि सीएम फंड की तरफ से 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार किया और इसी तरह से मोघा गांव में पले प्रकृति डंपिंग यार्ड व शमशान घाट और दीगर कामों को मुकम्मल कर दिया गया है और अनकरीब ड्रेनेज के कामों को तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच व टीआरएस कायदीन कारकुनान मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्का असेंबली के इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की सालगिरह तकरीब को कायदीन व कारकुनान शानदार पैमाने पर मनाते हुए दी मुबारकबाद। बांसवाड़ा हल्का असेंबली के इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब के पेश नजर टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए जन्मदिन तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाते हुए दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से बेरकुर के पोचराम कॉलोनी में सुरना की सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस कायदीन संतोष मनान, कॉर्पोरेशन मेंबर आरिफ के गंगाराम के अनिल ने मुकामी अवाम में फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर कायदीन ने बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की उम्र दराजी के लिए दुआएं करते हुए मुस्तकबिल में मस्जिद आला ओहदे पर फायज होकर अवाम की ताहियात तक खिदमत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेशन मेंबर आरिफ, मनान, शशिकांत, वीरेशम, अजहर, गंगाधर, पृथ्वी, पांडु, राजू के रघु व दीगर ने शिरकत की। मौसरा मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी के इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। मौसरा मंडल के मुकाम पर बांसवाड़ा हल्का असेंबली
के टीआरएस पार्टी के इंचार्ज पोशराम सुरेंद्र रेड्डी की जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए मुकामी अवाम में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाकर सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर ZPTC गुत्पा विजय भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए पोशराम सुरेंद्र रेड्डी की जानिब से मडल में फ्राहम करदा खिदमात को काबिल इस्तिताश करार देते हुए इन्हें दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में MPP P उमा रामलो, सरपंच सुमलता रामारेड्डी, MPTC ममता, कॉप्शन फेरोज, पार्टी मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, सेक्रेटरी साया गौड, नायब सदर राजशेखर रेड्डी, मंडल युद्ध सदर P हरीश, मौजे के पार्टी सदर गोपी रेड्डी, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन लिंगना, बाबा गौड, रामचंद्र यादगिरी व दीगर मौजूद थे। 26 साल नागाराजू जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर एयरपल्ली से निजामाबाद की जानिब जाने के दौरान सीमेंट की लॉरी से टक्कर देने पर बरसरे मौके हुआ हलाक। एयरपल्ली मंडल मंगल पाड़ देहात से ताल्लुक रखने वाले 26 साल नागाराजू मोटरसाइकिल गाड़ी पर सवार होकर एयरपल्ली से निजामाबाद की तरफ जाने के दौरान एक सीमेंट की लॉरी के टक्कर देने पर बरसरे मौके हलाक होने की हासिल करदा इत्तला पर इसाई हादसे के मुकाम पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ। పని చేసుటకు ఇంటి నుండి బయలుదేరి నిజామాబాద్ వెళ్ళుచుండగా ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర రాగానే వెనక నుంచి వస్తున్న సిమెంట్ మిక్సర్ లారీ డ్రైవర్ అతివేగముగా నడిపించి టక్కరివ్వగా తలపై వెనక టైరు వెక్కి తల నుజ్జు అయి స్పాట్లోనే డెత్ అయినారు। కేసు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేసి अकामती स्कूलों के लिए वक्फ अराजी का अलॉटमेंट सेक्रेटरीट में तातुल का शिकार। 3 माह से फाइल सेक्रेटरी के पास ज़ेर इल्तिवा, फंड्स की मौजूदगी के बावजूद मातहत ओहदेदार बेबस। तेलंगाना में महकमे अखलाती बहबूद की कारकर्दगी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस महकमे को अखलाती की भलाई और इनकी तालीमी तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत की जानिब से अखलातों के हक़ में फैसले और ऐलानात के बावजूद महकमे अखलाती बहबूद अमलावरी में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। फाइलों की एक्सवी में आला अहदेदारों की अदम दिलचस्पी का एक नया मामला इस वक्त सामने आया, जब तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से अखलाती अकामती स्कूलों के लिए 8 मुख्तलिफ मकामात पर वक्फ अराजी अलॉट की गई, लेकिन महकमे अखलाती बहबूद ने अभी तक वक्फ बोर्ड के फैसले पर अपनी मंजूरी की मोहर नहीं लगाई। अखलाती इदारों के अहदेदारों की बेबसी का ये आलम है कि वो इजाजत के बगैर सेक्रेटरी से मुलाकात की जुर्रत नहीं कर सकते। सेक्रेटरी और मातहत अहदेदारों के दरमियान तालमेल की कमी के नतीजे में अखलाती बहबूद से मुतालिक स्कीमात पर अमलावरी मुतासिर हुई है। बजट की जुआई के सिलसिले में अभी आला अहदेदारों का रवैया माना खैर से वाज़ेह है कि अखलाती अकामती स्कूल सोसाइटी ने स्कूलों की जाती इमारतों की तामीर के लिए वक्फ अराजी अलॉट करने की वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त की है। वक्फ बोर्ड ने हुकूमत से इजाजत हासिल करते हुए 13 सितंबर को करारदाद मंजूर की, जिसमें 8 मुकामात पर वक्फ अराजी को 30 सालाना लेस पर देने का फैसला किया गया। सालाना 10,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से अराजी अलॉट करने का फैसला किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी अकामती स्कूल सोसाइटी से मुआहदे की जिम्मेदारी दी गई। वक्फ बोर्ड ने दरगाह हजरत बाबा शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ अराजी मामड़ीपल्ली में 3 मुकामात और हयात नगर के कोहिडा में 1 मुकाम पर निशानदही की है। 10-20 एकड़ अराजी स्कूल की जरूरत के एतबार से लेस पर देने का फैसला किया गया। इसके अलावा लाल दरवाजे में मस्जिद फूलबाग, क्लोशमपुरा में जामा मस्जिद, खैराताबाद में मस्जिद कुतुब शाही और कारवान में टोली मस्जिद की वक्फ अराजी स्कूलों की तामीर के लिए लेस पर देने की करारदाद मंजूर की गई। मजमूई तौर पर 8 स्कूलों के लिए 56 एकड़ 23 गुंटा अराजी लेस पर देने का फैसला किया गया है। वक्फ बोर्ड की करारदाद को मंजूरी के लिए सेक्रेटरी अखलाती बहबूद के पास रवाना किया गया, लेकिन सेक्रेटरी के दफ्तर में फाइल बरफदान की नजर कर दी गई। डायरेक्टर अखलाती बहबूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की जानिब से तवज्जो दहाने के बावजूद सेक्रेटरी ने फाइल को मंजूरी नहीं दी, जिसके नतीजे में अकामती स्कूलों की तामीर के काम में पेशरफ्त नहीं हो सकी। दिलचस्प बात यह है कि तामीरी कामों के लिए बजट मौजूद है और वक्फ अराजी के अलॉटमेंट का मकसद कीमती अराजियात को
नाजायज कब्जों से बचाना है। हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल के बावजूद सेक्रेटरी अखलाती बहबूद का रवैया वक्फ बोर्ड और अकामती स्कूल सोसाइटी दोनों के लिए हैरत का बाइस बन चुका है। मरकजी वजारत अखलाती उमूर ने स्कूलों की तामीर के लिए फंड जारी कर दिए हैं। देखना यह है कि अकामती स्कूलों के लिए अराजी अलॉटमेंट का फैसला कब हकीकत में तब्दील होगा। मोरतार मंडल एसआई सुरेश ने सरखी की रोकथाम के लिए सीसी कैमरों के मुतालिक मुकामी अवाम व दुकान मालिकीन को शोर बेदारी अमल में लाई। मोरतार के एसआई सुरेश ने मोरतार दही तरक्की कमेटी के सदर व निगरान कार मेम्बरान मंडल से वाबस्ता मौजूआत के अवामी नुमाइंदे और तकुरी काबू तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के हमरा मुकामी अवाम को सीसी कैमरे के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि जराइम किसी भी तरह के क्यों न हो, सीसी कैमरे पुलिस के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने के अलावा सीसी कैमरों की बदौलत मुजरिम के सबूतों को अदालत में पेश किया जा सकता है और इन सबूतों की बुनियाद पर मुजरिम को सजा दी जाती है और हादसा से मुतालिक भी सीसी कैमरों के जरिए मुलजिमीन को पकड़ने में सहूलत हासिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एएसआई गंगाधर, पुलिस मुलाजमीन, दुकान मालिकीन, कारोबारी अफराद व दीगर ने शिरकत की। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में बमसेफ एंड बीएमएम व कौमी महासभा से मुतालिक पम्पलेट की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद के आरएनबी गेस्ट हाउस में बमसेफ एंड बीएमएम की 38वां कौमी महासभा पूना शहर में दिसंबर 25 से 29 दिसंबर 2021 तक 5 यौम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें 100% रिजर्वेशन और कौमी सतह से वाबस्ता मुख्तलिफ उमूर पर 5 यौम तक मुनक्किद होने वाले इजलास में तकरीबन 20 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन व अवामी नुमाइंदे शिरकत करने वाले हैं। लिहाजा बहुजन से वाबस्ता अवाम भारी तादाद में शिरकत कर मुनक्किद होने वाले महासभा को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में बमसेफ के कौमी प्रचार कमेटी के चिन्हैया, बीएमएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी राजेश, जमात इस्लामी हिंद के जिले सदर शेख हुसैन के अलावा TSAYS के राजा मलूक, BMP के रियासती कायद अकल आवैया व दीगर ने शिरकत की। के जानिब से 38वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम होने को है। बमसेफ की जो तंजीम है ये मुल्क के अंदर तकरीबन 30 साल से काम कर रही है। ख़ास तौर पे BC, ST, ST और जो है क्या है मजहबी जो माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम है, उसके अंदर जो है क्रिश्चन है, लिंगायत है, मुख्तलिफ लोगों के हुकूक़ के लिए कोशिश है और कोशिश कर रही है कि तमाम लोगों के हुकूक़ बराबर मिले। इसलिए इसके जो है क्या नेशनल प्रेसिडेंट वामन मिश्रन और दीगर लोगों को लेके बड़े पैमाने पर कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे दस्तूर को बचाना और मुल्क को बचाने की मुहिम भी जो है क्या जारी है। साथ ही साथ EVM जो है ना जो मशीन है उसके ज़रिए से बड़े पैमाने पर घोटाले होते हुए जो दूसरे जो तंजीमें इक़्तिदार पे आ रही है उसकी रोकथाम के लिए और EVM को जो है बयान करके बैलेट के ज़रिए से जो है क्या है मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए बोल के जो है क्या सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस भी दायर किया गया था। और ख़ास तौर पे ये 38वां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है इसके अंदर जो है कि बड़े पैमाने पर तमाम लोग हिस्सा लें और ये पुणे से लाइव होने वाला है और साथ ही साथ जो है फेसबुक और जो है क्या है व्हाट्सअप के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से ये पूरे लोग जो है देख सकते हैं। इसके अंदर जो है क्या मुनमिक हो सकते हैं और ख़ास तौर पे जो है क्या है जो मुल्क के अंदर जो चीज़ें हो रही है, जो रोनुमा हो रही है, मुल्क के अंदर जो तब्दीली हो रही है, दस्तूर को ख़त्म करने की कोशिश जहाँ पे जारी है, हमारा जो है क्या है क्योंकि हम बहैसियत शहरी, हम बहैसियत जो है हिंदुस्तान के, हम इंडिया के शहरी होने की हैसियत से मुल्क को बचाना हमारा काम है और ख़ास तौर पे दस्तूर को बचाना। अगर अम्बेडकर का जो दस्तूर है वो अगर नहीं बचा तो हमारे जो है ना अभी जो है ना हम जिस अंदाज में मीटिंग कर रहे हैं ये और जो बोलने की आज़ादी, हम जो है क्या है जितने भी जो आज़ादी है पूरी छीनी जा सकती है। ख़ास तौर पे हमको जो है वोट का राइट दिया गया है वो भी ख़त्म होने वाला है। लिहाजा हमको चाहिए बड़े पैमाने पर इसका जो है क्या मुखालिफत करे और जो है कि जो गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसी के खिलाफ बमसेफ రాష్ట్రీయ మూల నివాసి సంఘం యొక్క 38వ జాతీయ మహాసభలు ప్రతి సంవత్సరం జరిగిన మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా జాతీయ మహాసభలను ఈ నెల డిసెంబర్ 25 నుంచి 29వ తేదీ వరకు ఘనంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేయబోతా ఉన్నాం। దేశవ్యాప్తంగా ఈ దేశ మూలవాసి ప్రజలైనటువంటి BCలు, SCలు, STలు, మత మైనారిటీలు, క్రిస్టియన్లు, బుద్ధిస్టులు, ముస్లింలు, లింగాయతులు అందరి యొక్క విముక్తి ఉద్యమాన్ని
రాజ్యాంగబద్ధంగా రాజ్యాంగ పరిధిలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి బాంసెఫ్ జాతీయ మహాసభలను దిగ్విజయం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదని ఈ సందర్భంగా మేము ఈ జిల్లా ప్రజలకు మీడియా ద్వారా వినతి చేస్తూ ఉన్నాం. మిత్రులారా, ఈ దేశంలో సగభాగం ఉన్నటువంటి 52% ఉన్నటువంటి బీసీలను కులాధారిత జనగణన చేయాలని చెప్పి ప్రధాన ఉద్దేశం ఒకటైతే, దాంతోపాటు ఈ దేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా కానీ ఈవీఎంలను తీసేసి బ్యాలెట్ పేపర్లతో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క నేషనల్ కన్వెన్షన్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చించబోతా ఉన్నాం. బీసీల సమస్యల మీద చర్చించబోతా ఉన్నాం, షెడ్యూల్డ్ కులాల సమస్యల మీద చర్చించబోతా ఉన్నాం, షెడ్యూల్డ్ తెగల సమస్యల మీద చర్చించబోతా ఉన్నాం, మత మైనారిటీల సమస్యల మీద చర్చించబోతా ఉన్నాం. రాజ్యాంగం ద్వారా ఈ దేశ ప్రజలకు ఏవైతే హక్కులు అధికారాలు కల్పించబడ్డాయో ఆ హక్కులు అధికారాలు ప్రస్తుతం ఏ విధంగా అమలవుతున్నాయి, ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అనేది 100% సమీక్ష చేయడానికి 5 రోజుల బాంసెఫ్ మరియు భారత్ ముక్తి మోర్చా జాతీయ సమావేశాలను డిసెంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 29 వరకు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ దేశ మూలవాసి ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. పూణే నుంచి డైరెక్ట్ లైవ్ టెలికాస్టు అన్ని సోషల్ మీడియా ఛానళ్ళలో కూడా ఇది రావడం జరుగుతూ ఉన్నది. యూట్యూబ్లో, ఫేస్బుక్లో వామన్ మేశ్రామ్ ఫేస్బుక్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయబోతూ ఉన్నది. ఫేస్బుక్ ద్వారా, ట్విట్టర్ ద్వారా, యూట్యూబ్ ద్వారా. కాబట్టి దేశ ప్రజలందరూ కూడా మన బహుజనుల యొక్క సమస్యల మీద సుదీర్ఘమైనటువంటి చర్చ ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఈ చర్చలో పాల్గొని ఈ జాతీయ సమావేశాలు 38వ జాతీయ సమావేశాలు ఆన్లైన్ వర్చువల్గా జరగ तेलंगाना विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरपर्सन के तौर पर श्रीमती आकुला ललिता रघुवेंद्र का इंतखाब अमल में लाया गया। तेलंगाना भवन में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा टीआरएस पार्टी के इजलास में तेलंगाना विमेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन श्रीमती आकुला ललिता रघुवेंद्र ने शिरकत की और इस इजलास में रियासती वज़ीरा, एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, जिले परिषद चेयरमैन, डीसीएमएस सुदूर, डीसीसी बी सदर, रायतु बंधु के जिले कमेटी सदर, रियासती सतह कॉरपोरेशन चेयरमैन, टीआरएस पार्टी के निगरान का मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। मुबकाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अफसर ने मरहूम शरीक हयात अनीस बेगम के इसाले सवाब के लिए मस्जिद कमेटी को 107 गज अराजी का किया अतिया। मुबकाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अफसर ने इनकी अपनी मरहूम शरीक हयात अनीस बेगम की इसाले सवाब के लिए गाँव में 107 गज अराजी पर मुसलमानों को नमाज व इबादत की सहूलत फराहम करने के लिए मस्जिद कमेटी को अतिये के तौर पर हवाले किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी से वाबस्ता मेम्बरान व अक़लियती भाइयों की जानिब से मोहम्मद अफसर को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी व सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को खातिर ख्वाह मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद रफ़ी, नायब सदर मोहम्मद हबीब खान, खजांची याकूब पाशा, सेक्रेटरी शब्बीर, कमेटी के मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। मेरा नाम हबीब खान है और मैं नायब सदर हूँ। हमारे सदर साहब रफ़ी उद्दीन है और चाचर याकूब पाशा है और हमारे कमेटी के पूरे मेंबर हैं यहाँ पर। और मकसद ये है कि हमारे अफसर भाई और सो उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, उन्होंने मरहूम है उनकी बीवी, तो उनके नाम से एक प्लाट हमारे जामे मस्जिद को दिए, उन्होंने डोनेशन दिए और उसमें हमारे को बहुत खुशी है। हमारे पूरे मुक्काल के लोग सब यहाँ पर मस्जिद में बैठे हैं, जामा मस्जिद में, और उसको दिए सो बहुत बहुत उनको मुबारकबाद दे रहे हैं हम लोग। गाँव का नाम मुक्काल है हमारा, मुक्काल मंडल है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और उसको हमारे अफसर में हमारे को ये प्लाट दिए उसको हमारे मुक्काल की पूरी आवाम सब उनको शुक्रगुजार है। सड़क हादसे में मासूम लड़की शदीद जख्मी, जिंदगी व मौत के कर्ब में मुब्तला, इलाज के लिए अफराद खानदान की जानिब से ताउन की अपील।
शहर की गाजुलपेट से ताल्लुक रखने वाले शारदा लिम्बाद्रे की दुख्तर लक्ष्मी पुरसना सड़क अबूर करने के दौरान एक शख्स ने बाइक से टक्कर देने पर सर को गहरी चोट आने के बाद खून की तब्दीली अमल में लाने के लिए 4 लाख रुपए दरकार होने का विष्णु हॉस्पिटल के डॉक्टर की जानिब से इजहार करने के बायस इनके अफराद खानदान सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने की वजह से खून की तब्दीली के लिए दरकार अखराजात की अदायगी करने से कासिर है। लिहाजा अहले खैर हज़रात से मुस्तहिक़ीन के अफराद खानदान ने फ़ोन नंबर 9912777346 और 9849944133 पर अतिया देने की अपील की। తీసుకుపోయి బ్రెయిన్ కాడ తలిగి అక్కడ దూరంలో చాలా దూరంలో పడ్డేస్తాము. అప్పుడు వెంటనే కోమలో పోయినట్టు అయిపోయింది. వెంటనే తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసినాం. ఇంకా జాయిన్ చేసే వరకు అంటే స్కానింగ్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయిందని చెప్తే ఆపరేషన్ చేసింది సార్. 10 గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 1 దాకా ఆపరేషన్ జరిగింది. జరిగింది సార్. దయచేసి ఎవరైనా సాయం దాతలు ఉంటే విష్ణు హాస్పిటల్ ఫోన్ నెంబర్ హాస్పిటల్ నంబర్ వచ్చి 99127773। शहर में बैंक मुलाजमीन का धरना और रैली। बैंकों में खिदमात मुतासिर होने से खातेदारों को तकालीफ का सामना। बैंकों के मुलाजमीन को 2 रोज़ा हड़ताल के बायस कल और आज मुलाजमीन में गैर हाजिर रहने के बायस खातेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस हड़ताल की अपील की थी, जिससे निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ बैंकों के मुलाजमीन ने हड़ताल में हिस्सा लेते हुए शहर के SBI मेन ब्रांच पर धरना दिया। आज जुम्मा के दिन विनायक नगर इलाके से पुलांग चौरास्ते तक बैंक मुलाजमीन से रियाली मुनज़्ज़म की यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन इस मौके पर खिताब करते हुए अवामी शोबे की बैंकों को खानगी आने की मुखालिफत की। मुलाजमीन और अहदेदारों ने जोश व खरोश के साथ हड़ताल में हिस्सा लिया। शहर के बेशतर बैंक शाखें बंद रही, जिससे अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई ATMs पर रकम दस्तियाब नहीं थी। ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ పార్లమెంటులో ఒక బిల్లు తీసుకొని వస్తున్నారు. అంటే 100% దానిని 26%కు తీసుకొని రావడం వల్ల వాళ్లకు ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి సులభంగా మార్గం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ముందు 2 బ్యాంకులు ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఏదైతే వ్యాధి ఉన్నదో అన్ని బ్యాంకులకు సోకుతుంది. అందుకే ఈ బ్యాంకింగ్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మేము యునైటెడ్ ఫోరం ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్ 9 బ్యాంక్ యూనియన్ इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में फसलों की खरीद और फरोख्त। बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम को आगाह करने व दीगर मकासद के तहत तेलंगाना भवन में रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में आला सतही इजलास का इनेकाद। साबिक़ा ज़िले MLC आकुला ललिता बहैसियत तेलंगाना वुमेन्स फाइनेंस चेयरमैन रियासती वज़ीर आला KCR ने किया नामजद। वो मज़ीद 5 महकमे जात के चेयरमैन के नामों का किया ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की गलत पॉलिसियों के सबब अभी तक रियासत में 2 तुलबा की मौत तो शहर में 1 तालिब इल्म फौत। ऑनलाइन क्लासेस के सबब तुलबा का हुआ रवा साल काफी तालीमी नुकसान। तुलबा तंजीम ने किया एहतजाज मुनज़्ज़म। मक्कल मंडल में नमाज व इबादत के लिए मस्जिद कमेटी को एक शख्स ने किया अपनी अराजी का हत्या। दूसरे दिन भी मरकज की जानिब से बैंक को खानगी आने के खिलाफ शहर में बैंक मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।